Okay, we'll see now elastic collision in 2D. Again, it is elastic collision only in 2 dimension. तो 2 dimension में I told you कि उनकी जो line of motions are different. इसका line of motion थोड़ा ऊपर है, इसका थोड़ा नीचे है. There will be peripheral collision. यहाँ पे ऐसे आएंगे तो one will go this side, other will go this side. The line of motion is not in line. It will be 2D collision, but elastic collision and no loss of kinetic energy. All right. So this is M1 moving with U1, M2 moving with U2. इसमें भी रेस्ट पर लिया उन्होंने NCERT बुक में, but we'll take with the U2 है ना. And velocity after the collision V1, ये V2, mass M1, ये M2. This is x-axis, this is y-axis. Since it is elastic collision, what will be the equations? 2-dimensional elastic collision is also called oblique collision. इसको oblique collision भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना. So M1 goes at angle θ1 with x-axis, M2 at θ2 in each angle. So kinetic energy is conserved, since then initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. That will be U2 and V2. And initial kinetic energy इतनी, final दोनों equal होंगी. Since no loss of kinetic energy, why? Because it is elastic collision, no losses. Momentum is always conserved, whether elastic or inelastic, there is no issue. So linear momentum is conserved in x and y direction both. Along the x-axis, बताओ, what will be the linear momentum along the x-axis? Initial momentum बताओ, P initial along x-axis, P final along x-axis. बोलो क्या लिखेंगे, बोलो डायग्राम देख के बताओ. Okay. Shashwat, can you tell me initial linear momentum is how much? M1 U1. M1 U1 cos x. ये तो सीधे वाला तो straight. M1 U1 ही होगा. M1 V1 इसमें क्या आएगा, इसका जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट along the x-axis, इसका M1 V1 cos theta. cos theta 1, और इसमें इसका क्या आएगा, इसकी तरफ Cos theta M2 V2 cos theta 2. y डायरेक्शन में बताइए. Somebody will tell me along the y direction, बोला. Okay. Arjun, can you tell me the linear momentum along the y direction? Angular momentum along the y direction. बोलो. क्या होगा? पता नहीं सर. आसमा. संस्कृति. मैं बताऊं? एक मिनट वेट, तुम्हारा नंबर बाद में सबसे. संस्कृति, यू टेल मी फर्स्ट. संकेत. चलो बताओ शाश्वत. ओके, P initial along x is equal to P final along y. बोलो initial along x कितना? M1 U1 plus M1 U1 plus M2 U2. नो नहीं, y सॉरी y के लिए, दोनों y के लिए, x का y में कैसे कंजर्व होगा, y का y में कंजर्व होगा. हाँ अभी बताओ. y में जितना पहले है मोमेंटम उतना बाद में रहेगा, x में जितना पहले है उतना बाद में रहेगा. मोमेंटम सर कंजर्व.
इन एक्स डायरेक्शन का एक्स में, वाई का वाई में। बोलो वाई का, चलो बताओ शाश्वत, यू टेल मी नाउ। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 sin theta, m2 m1 v1 sin theta 1 plus m2 v2 sin theta 2. No, there are two mistakes. There are two mistakes. Well, anybody can correct the two mistakes? Sanskriti, can you correct two mistakes हो गई इनकी? Can you correct yourself now? Two mistakes. जो initially बोलो जल्दी से, दो मिस्टेक कौन कौन सी है बताओ। अच्छा वो y के along में लेना है इनिशियली भी, और दूसरा नहीं मालूम। वाई इनिशियल बताओ ना, फिर वाई एक्सेस के अलॉन्ग कितना होगा। अच्छा 1 मिनट सोच के बताता हूँ। एनीबॉडी एल्स? देखो ये इधर जा रहा है ना, 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो होते, चाहे इधर चाहे इधर। 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो, ये भी एक्स की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, और इसका क्या होगा फिर? v1 का y की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा? m1 v1 sin थीटा 1, ठीक है। और इसका m2 v2 sin theta 2 प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। इसका देखो, इसका माइनस ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर, इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ऐसा कंपोनेंट लेना सीखे थे हम लोगों ने बहुत डिटेल में। इसका नीचे की हाँ तरफ आएगा सर। माइनस m2 v2 sin थीटा 2। देखो 4 इक्वेशंस हैं एंड 5 अननोन्स हैं, है ना। एक तो v1 v2 अननोन है, फिर थीटा 1 थीटा 2 अननोन है ना। और नहीं, इक्वेशन 3 है, 4 अननोन है। इक्वेशन है 3, देखो ये 1 है, सॉरी ये 2 है, कॉस वाली 2 हो गई ना, साइन वाली 3 हो गई। अननोन कितने? थीटा 1 थीटा 2। तो ये दे कैन नॉट बी सॉल्व सिंस 3 इक्वेशंस and 4 unknowns, therefore cannot be solved. इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। One of the unknown is found out with the experiment, है नहीं, एक्सपेरिमेंट से या किसी दूसरे तरीके से मेजरमेंट करके दिया होगा, तब सॉल्व कर सकते हैं ना। तो बस इक्वेशन लिखना ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन है, रेफर डायग्राम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी आफ्टर। अच्छा ये वन डायमेंशन कोलिजन नहीं है, ये मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं ले रहे हैं, 2D इन इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं ना। हम क्वेश्चन किसका ले रहे हैं? 2D इन इलास्टिक कोलिजन का, क्योंकि सिंपलिसिटी सॉल्विंग के लिए सिंपल है ये। 2D इन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो एक बॉडी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, यहाँ पे ओरिजिन पे कोलाइड हो रही है। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन if both bodies stick together, if both body stick together after collision। कैसे करेंगे? बोलो आसमा, बताओ। अर्जुन, संस्कृति, शाश्वत,
आदित्य तुम लोग हो लाइन पर? सर सर या उस दिन बताया था ये क्वेश्चन हमने तुम लोगों को। यही तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। कैसे बताया था बोलो? स्टिक करके वेक्टर सम लेके जाएगी डायगोनल पे। m1u1 plus m2u2 is equal to m1 plus m2 v वेक्टर। वेक्टर से करते, अपोजिट में तो माइनस लगा देते, सेम में प्लस लेते, बट एंगल पे है तो वेक्टर से करना पड़ेगा। तो m1, इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो। m1 कितना है 1, u1 कितना है 1 आई कैप, ये आई कैप की तरफ जा रहा है। m2 कितना है 2 और u2 कितना है 2 जे कैप की तरफ जा रहा है। इक्वल टू m1, ओके m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें पता है 1 प्लस 2 v वेक्टर v। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप इज इक्वल टू 3 v। तो मॉड v कितना आएगा बोलो? हमें स्पीड निकालनी, फाइंड द, ओके ये स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई, हमें स्पीड निकालनी, सॉरी। स्पीड निकालनी है, क्या करें बोलो? मॉड कर दो मॉड करेंगे, v। ओके v विल बी 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप। j cap। तो स्पीड के लिए मॉड रूट ऑफ 1/3 स्क्वायर प्लस 4/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो बाहर निकल के 1/3 हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस 16 रूट 17/3। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? कौन सी डायरेक्शन में? अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो डायरेक्शन में लिखनी पड़ती है ऐसे कुछ, है ना? तो ये जो वेक्टर आया था ये वाला 1/3 यूनिट इधर, एक्स कंपोनेंट उसका 1/3 है, वाई कंपोनेंट 4/3 है। तो tan theta will be 4/3 divided by 1/3, तो 4 theta is equal to tan inverse of 4, tan inverse of 4 75 के आसपास आता है एंगल। गॉट इट? कैसे एंगल बताया मैंने? देखो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया अपना, आई कैप कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका 1/3, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, वाई का कंपोनेंट कितना है 4/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 अपॉन 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 4 आ जाएगा। दिस इज लॉग टेबल में देख के। तो वेलोसिटी जब लिखेंगे ये ऐसा बोलेंगे कि इट विल मूव विद द स्पीड दिस मच एट एंगल दिस मच विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे जाएगा, वाई एक्सिस से एंगल निकलना है तो इधर से एंगल निकालना पड़ेगा। ये 1/3 पहले आएगा, 4/3 बाद में नीचे आएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि भाई 2D भी हो गए और इसमें कैलकुलेशन भी थोड़े कम हो गए, क्योंकि बॉडी स्टिक हो गई ना तो वेलोसिटी डायरेक्ट मिल जाती है। इसमें क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इसमें बहुत सारी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। भाई जनरली अवॉइड करते ही 2D का ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते जिसमें स्टिक हो जाए तो सोल्यूशन बिकम इजी। क्लियर? अच्छा ये क्वेश्चन करके वाइंड अप कर देंगे। एक बॉडी देखो, एक यहाँ से हमने स्टिक एक बॉल थ्रो की और ये इधर चली गई, तो ये एंगल इसमें से एंगल सेम रहेंगे कि बीटा बड़ा रहेगा? हमने यहाँ पे बीटा बड़ा दिखाया है ना, तो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा और लेस देन अल्फा और मोर देन अल्फा। अभी तक तो हम इक्वल पढ़ रहे थे ना, अभी डिपेंड करता है, अगर E1 हुआ इलास्टिक कोलिजन हुआ तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा,
इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, ई जो है सपोज लेस देन 1 आया, तो अल्फा विल बी, बीटा विल बी ग्रेटर, ठीक। और स्पीड कितनी हो जाएगी, सपोज ने यू से हिट किया तो वी कितनी आएगी, अगर ई इक्वल टू 1 होगा तो वी विल बी इक्वल टू यू, स्पीड सेम आएगी। तो वी निकालेंगे कैसे, सपोज हमने यहाँ पे लिया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इंसिडेंट एट एंगल अल्फा विद द नॉर्मल with speed u, what will be the speed and angle after collision if coefficient of restitution is e? Surface is smooth, surface smooth है but elastic नहीं है, वो पूरी वो कैसी है, inelastic है, कुछ न कुछ उसका लॉस हो जाएगा। स्मूथ है तो ये वाला कंपोनेंट देखो, अगर वो स्मूथ है तो u का ये कंपोनेंट सेम रहेगा, ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, देखो नीचे वाला कंपोनेंट कौन, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो यू कॉस अल्फा कंपोनेंट और ये यू साइन अल्फा कंपोनेंट। तो यू साइन अल्फा तो इस तरफ है, सरफेस के पैरेलल है, तो फ्रिक्शन उसको, फ्रिक्शन है नहीं, तो ये कंपोनेंट अनचेंज रहेगा। तो सपोज वेलोसिटी चेंज हो गई तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये v हो गई, ये वाला कंपोनेंट जो है और ये वाला कंपोनेंट, तो बीटा हो गया तुम्हारा, ये बीटा कैसे वर्टिकल से है ना, तो ये बीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो v है, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, फाइनल स्पीड v cos बीटा और ये v sin बीटा, हमें v निकालना है ना u के टर्म में। तो ये बताओ, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिंस सरफेस इज स्मूथ therefore horizontal component doesn't change, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, v sin बीटा जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, इसके बराबर ही रहेगा u sin अल्फा के। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, हमें v निकालना है ना u के टर्म में। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो, v cos थीटा कितना हो जाएगा, since coefficient of restitution is e, therefore v1 is equal to e times of v, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो v1 कौन सा है, वेलोस कोलिजन के बाद का वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, तो v cos बीटा इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ कोलिजन से पहले वाला कंपोनेंट ये u cos अल्फा। इनको डिवाइड कर दो तो हमें बीटा एंगल मिल जाता है अल्फा के टर्म्स में, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये v स्क्वायर v मिल जाता है, ये cos sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, इधर कुछ आ जाएंगे ये वाले टर्म्स के, इसका फिर अंडर रूट, तो v की वैल्यू अंडर रूट में कुछ आ जाती है, u बाहर आ जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर ई 1 हो जाएगा तो ये वाला रूट वाला भी 1 हो जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू u, ठीक है, आया समझ में। अभी ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो बाउंसिंग बैक वाली वेलोसिटी होती है वो इंसिडेंट वेलोसिटी की e टाइम्स होती है, उससे हमने वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया, मतलब रिलेट कर लिया, और स्मूथ सरफेस है तो ये हॉरिजॉन्टल कम, ये जब जैसे हिट करती ना बॉल, अगर फ्रिक्शन होता तो वो उसकी स्पीड को कम कर देती, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल रहेंगे, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट इसका इंसिडेंट कंपोनेंट का e टाइम्स हो जाएगा, ये बाउंसिंग बैक वाला कंपोनेंट है ये।
क्लियर? तो यहाँ पर इसको हम फिनिश कर देंगे, मतलब ये हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट परसों जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्किंग डे में विल स्टार्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर? No, sir. तो ये नहीं, ये सब बस इतना समझ लो, इसमें ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चन, तो यू कैन स्किप इट फॉर द, ये एक्स्ट्रा में डाल देते हैं इसमें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तुम्हें अपने बोर्ड उसके लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना। All right, then I will stop it here. Thank you. We'll continue in the next class. Okay, sure.